विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीवासवानवे देवी दयिताय कृपाब्धये विश्वसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरा करुणाशक्ति माया नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धान्तध्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्भोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावरायते गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्गेष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवः सार्वभौमः श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्पङ्गुर् मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्बोजौ राधामदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवौ पृष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणुसुनेर्गोपीनाथः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य नंद श्री गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Reading from Chaitanya Charitamrita Madhya Lila chapter 13 verse number 119. यही मत गौर श्यामे दोहे ते लाटीला सर्वत श्यामेरा राखे गौर महाबली। Thus there was a sort of competition. English, Hindi? Huh? English. Thus there was a sort of competition between Chaitanya Mahaprabhu and Lord Jagannath in seeing who would lead. But Chaitanya Mahaprabhu was so strong that he made Jagannath wait in his cart. In his Anubhashya, Srila Bhakti Siddhanta, the ecstasy of Sri Chaitanya Mahaprabhu as follows. After giving up the company of the gopis in Vrindavan, Sri Krishna, son of Nanda Maharaj, engaged in the pastimes of Dwaraka. When Krishna went to Kurukshetra with his brother and sister and others from Dwaraka, he again met the inhabitants of Vrindavan. Sri Chaitanya Mahaprabhu is Radha Bhavaduti Suvalita, that is, Krishna himself assuming the part of Srimati Rani in order to understand Krishna. Lord Jagannath Deva is Krishna and Chaitanya Mahaprabhu is Radharani. Chaitanya Mahaprabhu is leading Lord Jagannath towards Gundicha temple corresponds to Srimati Radharani leading Krishna towards Vrindavan. Sri Kshetra Jagannath Puri was taken as the kingdom of Dwaraka, the place where Krishna enjoys supreme opulence, but he was being led by Chaitanya Mahaprabhu to Vrindavan, a simple village where all the inhabitants are filled with ecstatic love for Krishna. Sri Kshetra is a place, is a Lila, just as Vrindavan is a place of Madhurya Lila. Sri Chaitanya Mahaprabhu following at the cart the rear of the Rath Yatra indicates that Lord Jagannath, Krishna, was forgetting the inhabitants of Vrindavan. Although Krishna neglected the inhabitants of Vrindavan, he could not forget them.
This is his opulent Rath Yatra. He was returning to Vrindavan. In his role of Srimati Radharani, Sri Chaitanya Mahaprabhu was examining whether the Lord still remembered the inhabitants of Vrindavan. When Chaitanya Mahaprabhu fell behind the Rath cart, Jagannath Deva, Krishna himself understood the mind of Srimati Radharani. Therefore, Jagannath sometimes fell behind the dancing Chaitanya Mahaprabhu to indicate Srimati Radharani that he had not forgotten. Thus, Lord Jagannath would stop the forward march of the Rath and wait at a standstill. In this way, Lord Jagannath agreed that without the excess of Srimati Radharani, he could not. While Jagannath was thus waiting, Gaurasundar Chaitanya Mahaprabhu, in his ecstasy of Srimati Radharani, immediately came forward to Krishna. At such time, Lord Jagannath would proceed ahead very slowly. These competitive exchanges were all part of loving affairs between Krishna and Srimati Radharani. In that competition between Chaitanya's ecstasy for Jagannath and Jagannath's ecstasy for Srimati Radharani, Chaitanya Mahaprabhu emerged successful. So, very interesting pastime. This is जगन्नाथ रथ यात्रा अभी आगे आगे चल रहा है और चैतन्य महाप्रभु का भी क्या आगे आगे नृत्य करते हैं और जितने तेजी से चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते आगे बढ़ते हैं जगन्नाथ रथ भी आगे बढ़ चलता है। धीरे धीरे चलते चैतन्य महाप्रभु तो रथ भी धीरा हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु कभी कभी पीछे चले जाते रथ के पीछे और रथ रुक जाता है और अनेकों लाखों लोग मिलकर उसको खींच रहे रथ को, एक इंच भी आगे नहीं बढ़ता। तो कभी कोई चैतन्य महाप्रभु पीछे क्यों चले जाते हैं? चैतन्य महाप्रभु राधा भाव ज्योति सुवलितम कृष्ण राधा रानी के भाव में है। एक तरीके से बताया जाए जिस तरीके का भाव है उस प्रकार का व्यक्ति है। तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी है, जगन्नाथ जी कौन है? कृष्ण है। राधा रानी कभी कृष्ण रथ के पीछे चली जाती हैं तो जगन्नाथ जी सोचते हैं कि क्या फ़ायदा वृंदावन जाके, व्हाट इज़ द यूज़। ब्रज इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि राधा रानी है, राधा रानी पीछे है तो मैं रुक जाऊंगा। तो जगन्नाथ जी समझ जाते हैं चैतन्य महाप्रभु का भाव को। चैतन्य महाप्रभु का भाव क्या है राधा रानी के मूड में? क्या सच में मुझे हमको याद करते हो भी कृष्ण? हाँ याद करता हूँ, मैं वृंदावन तो आप ही के लिए तो आ रहा हूँ। ऐसे भाव से इन दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है। ये कंपटीशन में कौन जीत रहा है? चैतन्य महाप्रभु राधा रानी जीत। नाचिते नाचिते प्रभु रहिला भावांतरा हास्तुरी श्लोक पढ़े करी उच्च स्वरे। ऐसे नाचते नाचते चैतन्य महाप्रभु जो है दोनों हाथों को उठाते हुए तो उन्होंने क्या किया? एक श्लोक को उच्चारण किया। यह कौमार हरस्वे वही परास्ते एव चित्रक्षपास तेजोन्मिलितमानति दुर्प्रौढ़ा कदम्बानिला सजैवांशुतता यत्र सुरत व्यापार लीला विधौ रेवा रोदसी वेदसी तरुतले चेतस्समुत्कंठते। ये श्लोक एक साधारण सी नाटिका से थी। ये नाटिका कोई युवक और युवती के बीच में प्रेम की नाटिका है, लव स्टोरी थी। सब लोग सोच रहे थे महाप्रभु ये क्या श्लोक उच्चारण कर रहे हैं। ये श्लोक में तो एक युवती कहती है युवक को तुम वही हो मैं भी वही हूँ, लेकिन जगह वो नहीं है। हमको मुझे याद आ रहा है वो गांव का जब पहली बार हमने हमारा मुलाकात हुआ था बचपन में। हाँ वही रेवा नदी के तट में एक बड़ा सुंदर वृक्ष के नीचे मिलते थे। अभी वो जगह वो नहीं है। क्या हुआ? ये श्लोक महाप्रभु उच्चारण कर रहे लेकिन अंदरूनी भाव क्या है? महाप्रभु के हृदय में वो लीला का स्मरण क्षेत्र में वो जो लीला हुआ था जहाँ राधा रानी ने कृष्ण को खींचते हुए लेके गई थी। यह कौमार हरः ये श्लोक महाभारत स्वरूप बिना अर्थ के नहीं जाने बात। स्वरूप गोस्वामी और रूप गोस्वामी स्वरूप दामोदर और रूप गोस्वामी के अलावा और श्लोकार्थ पूर्वे करिया छे व्याख्यान श्लोके संक्षिप्ताख्यान। तो पहले श्लोक का अर्थ को पहले कह चुका हूँ लेकिन संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ। पूर्वे चे कुरुक्षेत्र सभा गोपीगण। पहले क्या हुआ? कुरुक्षेत्र में सारे गोपीगण जो है वो कृष्ण से उनकी मुलाकात हुआ था। कृष्ण दर्शनपाना आनंदित मन। कृष्ण दर्शन करके और बड़े आनंद का अनुभव किए। जगन्नाथ देखी प्रभु रसी भावतिला
से भावाविष्ट होना दुहा गा गाओ आइला। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे जगन्नाथ को दर्शन किए, वही भाव को चैतन्य महाप्रभु को प्रकट हुआ जब राधा रानी गोपिया कृष्ण से उनका मुलाकात हुआ। आवेशे राधा कृष्ण करे निवेदना, सही तुम्हें सही अमी सही नव संगम। तो राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे, सही तुम्हें सही अमी, तुम वही कृष्ण हो, मैं वही राधा रानी हूँ। सही नवा संगम, लेकिन अभी नया संगम हो रहा है। तथापि हमारा मन हरे वृंदावन, मेरा मन जो है वृंदावन की ओर रहा है। वृंदावन उदय कराओ अपना चरण, इसलिए हे भगवान हे जगन्नाथ, आप वृंदावन में अपना चरण को उदय कराइए, वृंदावन चलिए। यहाँ लोकारण्य हाथी घोड़ा रथ ध्वनि, कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है? उधर हाथी है, घोड़ा है, लोकारण्य है, हाथी घोड़ा रथ ध्वनि, रथों रथ चल रहा है। कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र है। तहाँ पुष्पारण्य भृंगपी गनाद सुनी है, वो पुष्पारण्य है। कुरुक्षेत्र क्या है? वो लोकारण्य है। और कुरुक्षेत्र में घोड़ा हाथी ध्वनि है। पीक भृंग नाद सुनी, पीक भृंग, पीका भृंग पीक नाद सुनी, भृंग है। और अलग अलग प्रकार के पक्षियाँ हैं, उनकी आवाज़ सुनाई पड़ता है। इधर हाथी घोड़ा का आवाज़ सुन के क्या ये थोड़ी ना प्रेम का जगह होता है कुरुक्षेत्र। प्रेम व्यवहार हो रहा है और घोड़ा खड़ा है, थोड़ी तो हाथी खड़ा है। प्रेम मतलब कुछ पक्षियाँ होना चाहिए और कुछ मयूर होना चाहिए, ये प्रेम के लक्षण होते हैं। यहाँ राजा वेश संघ सवार क्षत्रिय गण, ये तो राजा वेश है तुम्हारा, कृष्ण क्या है, चलो इधर से। राजा वेश भी प्रेम थोड़ी ना होता है। क्षत्रिय गण कहाँ रघुपवेशा संघ मुरली वदन, उधर वृंदावन में तुम्हारा क्या है? वो गुप्तवेश है। और रजे तुम्हारा संगे यही सुखा स्वादन, से सुखा समुद्र यहाँ नहीं एक खंड। ब्रज में तो सुख का समुद्र है और कुरुक्षेत्र में वो सुख का एक कण भी इधर प्राप्त नहीं होता है। हमारा ना पुनः लीला करा वृंदावन, तबे हमारा मनवांछा है तापुरन। हमारा ना पुनः लीला का करा वृंदावन, हमको लेके जाओ और हम दोनों जाएंगे वृंदावन में, पुनः लीला करेंगे, तभी हमारा मन की जो वांछा है पूर्ण हो सकता है। भागवती आचे ऐचे राधिका वचन पूर्वे ताहा सूत्र मध्य करियाचे वर्णन। भागवत में इसका वर्णन आया है और श्रीमद् भागवत में इसको मैंने संक्षिप्त वर्णन किया। राधा रानी का वाक्य है, श्री भागवा भावावेशे प्रभु पढ़े 8 श्लोक, और इस श्लोक को उच्चारण करने लगे बड़े भावावेश में। सही सब श्लोकेरार्थ नहीं बुझे का लोग जो हैं ये श्लोकों का अर्थ को समझ नहीं पा रहे थे। कोई लोग स्वरूप गोस्वामी जाने ना कहे अर्थकार, तो स्वरूप दास गोस्वामी के अलावा और कोई जानते नहीं थे। और ये श्लोक बड़ा गुई श्लोक है। श्री रूप गोस्वामी कैलासी अर्थ प्रचार, ये श्लोक का अर्थ जो है रूप गोस्वामी पाद ने खूब प्रचार किया। स्वरूप संगे अर्थ करे आस्वादन, नित्य मध्य से श्लोक करे न पठन। चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक को जोर जोर से उच्चारण करने लगे। जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ में वो वर्णन कर वो श्लोक को गाने लगे। ये भागवत का अद्भुत श्लोक है। आहुश्चते पदारविंदम योगेश्वरैरिति विचिन्त्य मगाधबोधै संसार कूपपतितोत्तरनावलम्बं केहं जुषामपि मनस्तुतियात् सदा नः। भागवत में रथ यात्रा का वर्णन करने वाला ये श्लोक है। यह आपको 10वां स्कंद का 82 अध्याय में और 48वां श्लोक में ये प्राप्त होता है। अभी महाप्रभु इस श्लोक का आख्यान करने लगे, इस श्लोक को व्याख्यान करने लगे। ये श्लोक राधा रानी स्वयं ने उच्चारण किया, जगत को मालूम नहीं था। भागवत में है श्लोक, लेकिन उसका अर्थ किसको मालूम है? वही राधा रानी को आना पड़ा इस श्लोक को वर्णन करने के लिए। कृष्ण राधा रानी का भाव, राधा रानी के भाव में उसी श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं। अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन, मने मने एक करी जानी, कहाँ तुम्हारा पद द्वय करह यदि उदय, तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मानी। ये श्लोक 2 अर्थ है। एक सीधा सीधा अर्थ है, गोपियाँ कहती है
कि हे भगवान, हे कृष्ण, हाँ उच्चते नलिनावदारविंदम। लोग बड़े बड़े लोग कहते हैं हाँ नलिन नाभ पदारविंदम, हाँ नलिन नाभ हो, आपके नाभि से एक सुंदर कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और पदारविंदम योगेश्वरी हृदय विचिंत मगाध बोधि। आपके चरण कमलों को योगीगण जो है स्मरण करते हैं और अगाध बोधि बड़े ज्ञानीगण भी आपको उपासना करने के लिए तो संसार कूप में गिरे पड़े हुए हैं। संसार को पतितोत्तर नावलंबम, आपका चरण कमल जो है संसार के कूप में पड़े हुए लोगों के लिए एक नाव के समान है। हम तो ना ज्ञानी है ना योगी है, कर्म में भी हमको कोई इतना हमको कुशलता नहीं है। हम तो घर के कामकाज करने लगे, हम जुषा में बने सिद्धिया सदाना। हे भगवान, आप हमको उपदेश मत देना, योग में बैठो, में से नहीं होगा। हम तो साधारण स्थितियाँ घर में कामकाज करने वाले हैं, ज्ञानी तो है नहीं, योगी तो है नहीं, बड़े बड़े कामकाज। कृपा करके आप ही बस जाओ मेरे हमारे हृदय में आके। ऐसे दीनता से ऐसा लग रहा है कि श्लोक राधा रानी, लेकिन जब राधा रानी इन श्लोकों को उच्चारण करती, गोपियाँ और राधा रानी की पक्षी गोपियाँ, उसमें डबल मीनिंग रहता है। हुष्टते, अच्छा इतना बड़ा हो गया, हमने सुना तुम्हारी नाभि से कमल उत्पन्न होता है। जानते हो एक ऐसा एक टाइम था, नचा नचा के तुमको चाच बुलाते थे। मेरे नाम, अच्छा तुम्हारे चरण कमलों को योगीगण जो है हृदय में ध्यान करते हैं ना, हृदय में। तुम जानते हो तुम्हारे चरण कमल जो है, ने प्रार्थना किया था, हे भगवान आप अपने चरण कमलों को, हे कृष्ण तो अपने चरण कमलों को अपने स्तनों के ऊपर रखो। ये चरण कमल जो है हृदय योगीगण खाली ध्यान मात्र करते हैं। हम इन चरण कमलों का कष्ट ना हो, इस प्रकार का हमारा विचार रहता है, भक्ति का भाव है। तुमने तो बोधई संसार कूप पतितोत्तर नावलंबम, ये चरण कमल जो है उनको वो लोग शरण लेते हैं जो संसार के सागर से उठना चाहते। क्या हम संसार के सागर में डूबे हुए? हे कृष्ण, संसार को तो हमने कब क्या छोड़ दिया, हम तो तुम्हारे विरह सागर में डूबे हुए हैं। संसार सागर हमारे लिए नहीं है, इसलिए ये कर्म और ज्ञान योग का शिक्षा जो है हमको मत देना। क्योंकि कृष्ण ने क्या किया था, गोपियों को, रो मत गोपियाँ, क्योंकि आत्मा और शरीर में भेद है। पता नहीं कृष्ण को क्या हो जाता है, कुरुक्षेत्र में आती भगवदगीता याद हो जाए, याद हो तो अर्जुन को सुनाया था, ठीक था, तो कैसे रहेगा बताओ। गोपियां जो कृष्ण के लिए रो रही है और कृष्ण बोल रहे असोचानंद प्रज्ञावादाम से भाष से, और गोपियों को जैसे अर्जुन को कहा, अर्जुन ने कहा करिष्य, राधा रानी जो है करिष्य बातें मत करो, क्या बोल रहे हो, गेहम जुषाम अभी माने सुदिया सदा नहा, गेहम जुषाम, वैसे सीधा सीधा अर्थ में क्या है, हम तो घर के कामकाज करने वाले हैं, ये एक अर्थ है। लेकिन दूसरा अर्थ क्या है इसका, गहरा अर्थ क्या है, गेहम का घर चलो, चल, हाँ घर चल। हाँ जैसे पतिदेव ऑफिस में बहुत काम कर रहे हैं, बहुत बिजी हैं, पत्नी 10 बार फ़ोन की तो वे पति जो है फ़ोन आई नहीं, आता बोल के उल्लू बना रहे, तो ऑफिस आ गई पत्नी, बड़ा मीटिंग चल रहा है। हाँ पत्नी आके पतिदेव को बोलती है, अच्छा आप बहुत बिजी हो, हाँ थोड़ा घर चलिए, हाँ बताऊंगी मैं कितना बिजी हूँ मैं भी तो बिजी हूँ तो ऐसे डबल मीनिंग के साथ बात करती पत्नी है। स्त्रियों को ये स्वाभाविक गुण है डबल मीनिंग बात करना। अच्छा ऐसा है, ठीक है, बाप रे बाप डेंजर है। तो ऐसे कृष्ण को इस प्रकार राधा रानी बोलने लगी, और उसी प्रकार वही राधा रानी इन श्लोकों गा रही है। एक हो दैन्य रूप में, दैन्य भाव से, अन्य हृदय मन, हे कृष्ण लोगों का, अन्य लोगों का जो हृदय और मन है वो अलग होता है, और मौने वौने एक करी जानी, लेकिन हमारा अनुभव बहुत सरल है, मन और वन एक ही है। मेरा मन मोरा मन वृंदावन, तारा तुम्हारा पद द्वया। अगर आप हमारे हृदय में
जब अपने चरण कमलों को, यानी वृंदावन में जब तक चरण कमलों को आप रखोगे तब तक पूर्ण कृपा है करके नहीं मानते। तो कृष्ण ने कहा था, देखो हे राधे चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना, हम इधर सिलाई करेंगे। अच्छा देखो, जब तक वृंदावन नहीं चलोगे तब पूरा कृपा है करके मानते नहीं है। आप कुछ भी कर लेना, इधर चलो वृंदावन। हर श्लोक के पीछे यही भाव रहता है कि राधा रानी का वृंदावन चलो, वृंदावन चलो। आगे, प्राणनाथ सुनो मोरा सत्य निवेदन, प्रजा मार सदन, कहाँ तुम्हारा संगम, ना पाइले न रहे जीवाना। कृष्ण अगर कहोगे ना मैं नहीं आऊँगा, क्या करोगे? मर जाऊँगे, हम मर जाएंगे। ना पाइले ना रहे जीवना, अगर आपका अगर चरण वृंदावन में प्रकट नहीं होता, हमारे साथ वृंदावन नहीं चलोगे, हम तो खींच के तो लेके जाएंगे तुमको, लेकिन नहीं चलोगे तो ना रहे जीवन। ये निश्चित सोचना कि हमारा जीवन नहीं रहेगा, प्रजा हमारा सदन। ये जो है आप सोच सकते हो हमको छोड़ के द्वारका आया, आके द्वारका में राजा के रूप में आप जीवित हो, लेकिन ऐसा नहीं हमारा स्वभाव। हमारा प्रेम में आपके प्रेम में बहुत अंतर है। आप जो है हमारे बिना जी सकते हो, हमको छोड़ के आपने 16,108 पत्नियों को किया, लेकिन आज तक हमने और की कोई और पराये पुरुष सोचा तक नहीं। आप द्वारका में बैठे 56 भोग खा रहे हो। हे कृष्ण, जब से तुम गए हो ना द्वार छोड़ के, तब से एक बूंद तक पानी भी नहीं पिया। ये हमारा प्रेम को जाना तुम्हारी बस की बात नहीं है। चलो भाई, कौन है मान तुम मेरे प्राण नाथ हो। जैसे प्राण सबके प्रिय होता है तो उसको कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हे कृष्ण, तुम हमारे प्राण हो और तुमको लेके जाने के लिए हमारे साथ में हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। बाहर से ऐसा लगता है कि इस लोगों से कितना दैन्य है, तो दैन्य भाव के नीचे कितना क्रोध भी है, वो दोनों को दिखना चाहिए। प्राणनाथ हो सुनो मोरा दैन्य, देखो तुम प्राणनाथ हो, हमारा प्राण हो, किसी का प्राण नहीं हो तुम। और सुनो मोरा सत्य निवेदन, ये सुनो मोरा हमारा सत्य निवेदन सुनो कि राजा हमारा, भूल गए क्या? अपना घर को भूल के किसी और घर में जाके बोलते हो अपना घर है। देखो तुम कहीं भी जाओ दुनिया में, तुम्हारा घर कोई नहीं होगा। तुम किसी को 16 लाख विपत्ति करने, हमारे जैसे कोई मिलने वाला नहीं तुमको। ऐसे इन श्लोकों के इस प्रकार की व्याख्यान है। पूर्व उद्धव द्वारे ये भी साक्षात हमारे योग ज्ञान है कैला उपाया। एक ओर से देखा जाए, राधा रानी कहते हैं, हे भगवान, आपने तो पहले उद्धव को भेजा था योग और ज्ञान की शिक्षा देने के लिए, अभी वापस रहे हो। तुम्हें विदग्ध कृपामय जाना हमारा हृदय, आप बड़े कृपामय हो, हमारे हृदय को जानो। मोराए छे कही थे ना युया, तो इस प्रकार हमको कठिन बातें मत कहो। ऐसी दैनिकता से बात करो। बाहर से, अंदर से क्या है? देखो पहले भी उद्धव को भेजा था, कुछ काम हो गया, हमको समझा पाया गया। हाँ, अब वापस को समझाना चाहते हो? हमको ना कर्म का, ना ज्ञान का, ना योग का शिक्षा देने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम तुमसे प्रेम करते हैं। देखो ये प्रेम करने वाला करेगा, हम रोएंगे, जो करना कर लेना तुम। और योग ज्ञान कहिला उपाय, ये उपाय होता है क्या? नहीं, योग और ज्ञान की शिक्षा उपाय नहीं। तुम्हारा उपस्थिति, तुम्हारा संगति, तुमसे रास करना, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं। तुम विदग्ध माधव कृपा में। अच्छा, कौन कहता है तुम कृपा में हो? शर्म नहीं आता? लोग कृपा है, हमको इतना रुला रुला के इधर तुम द्वारका में इधर मजा ले रहे हो, ये कहाँ का कृपा बताओ? एक ही श्लोक है लेकिन इसका दो अर्थ होता है ना। और जाना हमारा हृदय, अच्छा तुम जब जान पाया हमारा हृदय को, इससे बोले जाना हमारा हृदय को जानो, यानी तुम जान नहीं पाओगे हृदय को। चलो वृंदावन अभी मोर है छे कही थे ना। देखो ये ठीक नहीं है। इस प्रकार तुम हमको आके शिक्षा देते हो, ये कहाँ का न्याय है? ये ठीक नहीं है। चलो वृंदावन। आगे, तुम्हाते विषया छाड़ी लगाईते, यत्न करे नारे कारी बारे, तारे ध्यान शिक्षा करा, लोका साना मारा, स्थान स्थान नाय करे विचारा। चैतन्य महाप्रभु आगे राधा रानी के भाव में कह रहे,
देखो अगर मैं तंग आ गई थी, हमारी परिस्थिति ऐसी हो गई थी, तुम्हारे बारे में सोच को क्या ऐसा लग रहा था कि बस हमारा प्राण खत्म हो गया, अब जीना क्या फ़ायदा। किसी ने उपदेश दिया था हमको, भूल जाओ ना कृष्ण को, भूल जाओ ना कृष्ण को। तो हमने बहुत प्रयास किया। चित्ता काढ़ी तुमा होइते, चित्ता काढ़ी मतलब चित्त को तुमसे निकालने के लिए बहुत प्रयास किया। विषयाचा लगाई थे, विषयों में लगाने के लिए हमने बहुत प्रयास किया। देखो कृष्ण इतना आसान नहीं है तुमको भूलना। तुमने क्या क्या ध्यान करोगे, क्या खाना, ये ध्यान करने की बात तो छोड़ो। तुम्हारा ध्यान हमारा मन में तुम्हारा ध्यान इतना दृढ़ है, तुमको भूलने के लिए हमने ध्यान किया। हम लोग क्या करते हैं, कृष्ण को स्मरण करने के लिए ध्यान लगाते हैं कृष्ण के ऊपर। गोपियाँ क्या कहती हैं, हमने ध्यान किया, बहुत प्रयास किया, नहीं होता। इतना आसान है क्या? हमारा प्रेम तुम्हारे प्रति इतना दृढ़ है कि कोई भी हो, कितना भी प्रयास करो, ये आपका स्मरण तो जाने वाला नहीं है। यत्न करी नारी कड़ी बारे, इतना यत्न करने के बाद भी तुम्हारे से चित्त निकालने के लिए, घर के काम काज में लगाने के लिए प्रयास किया, हुआ नहीं। थारा ध्यान शिक्षा करा लोक हासाना मारा। देखो स्वाभाविक तरीके से हमारा प्रेम तुम्हारे प्रति है। अगर ऐसे भक्तों को, हमारे जैसे भक्तों को तुम उपदेश दे रहे हो, ध्यान लगाओ करके, ऐसा उपदेश दोगे ना, अच्छा वो हमारे सामने दिया और कोई सुनेगा ना, तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। सारे गोपियाँ आओ, हाँ, गोपियों का भगवद्गीता क्लास देना शुरू कर दिया। क्या असोचानंद सोचस्तुम प्रज्ञावादाम सुभाषे जायते व्रेते वा कदाचित, ये सब क्लास दो गोपियों को। लोग क्या पागल हो गया क्या, हंसेंगे। तो लोक उपहासा स्थाना न करा विचारा। देखो तुम्हारे जो ये शिक्षाएं हैं, उस शिक्षाओं का हमको एक स्टूडेंट मान के समझ रहे हो? हाँ, एक बार विचार करो। स्थाना ना करे विचारा, कौन सा स्थान में कौन सा प्रवचन देना चाहिए वो तो सीखो। हाँ? एक लड़का था, वो प्रभु जी में गांव गया था, गांव में मैं बहुत प्रचार किया, कोई सुनता ही नहीं मेरी बात। मैंने क्या प्रवचन दिया था? मैंने कहा प्रभु जी किस, उसने कहा मैंने पूरा पीपीटी दिखाया। क्या दिखाया उसके अंदर? साइंटिस्ट लोग हैं, उनका सारा चीज़ बेकार है। तो साइंस को मालूम ही नहीं है, बच्चे गाँव में लोगों को, किसान लोगों को। वो डाल्टन, वो रुद्रपुर ने क्या कहा, वो क्या कहा, वो क्या बताओ। उधर जाके सिखाना चाहिए, गीता भागवत सिखाना चाहिए डायरेक्टली। हाँ, दोनों क्या समझ में आएगा? स्थान और स्थान के अनुसार प्रवचन होना चाहिए। एक कृष्ण और कोई मिला नहीं क्या ये सब बातें सुनाने के लिए? हमें मिले क्या? हाँ, लोग हंसेंगे। योगीश्वर पद कमला तुम्हारा ध्यान करे पाई बे संतोषा। आपने क्या कहा? मेरी चरण कमलों को ध्यान करो। देखो योगी गण हो सकता है खुश हो जाए आपकी चरण कमलों को ध्यान करके, लेकिन हम गोपियां हैं, आपकी चरण कमलों की ध्यान करके संतोष को प्राप्त करने की बात तो छोड़ो, कभी हो ही नहीं सकता। ध्यान करने से संतोष थोड़ी ना है। बच्चा बोलेगी बच्चे को, हे बच्चा मैं तुमको हमेशा ध्यान करती हूँ, करती ही है, उसको सेपरेट कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और कोई माँ को बोलेंगे ठीक हो ना, आप अपने ध्यान करो, 10 मिनट ध्यान करो। 10 मिनट क्या, 24 घंटा ध्यान करती है, वो स्वाभाविक तरह से ध्यान करती है। जैसे गोपी नहीं गोपीरा योगेश्वर, नहीं गोपी योगेश्वर, हाँ पद कमला तुम्हारा ध्यान करे पाइब संतोषा, तुम्हारा वाक्य परिपाती तार मध्य कूटा नाती। वो कहती है तुम्हारी व्याख्या जो है, हाँ ऐसा लगता है कि बाहर से बहुत दया से हमारे ऊपर प्रेम से तुम इस प्रकार की बातें कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी बातों में क्या लिखा, क्या है मालूम है? तार मध्य कूटनाती। वो इस प्रकार का डुप्लिसिटी जो है हमने कभी नहीं देखा।
हम जैसे गोपियों के पास आके बोलते ज्ञान करो, हाँ ज्ञान मग्न हो जाओ, उपनिषद पढ़ो, इस प्रकार का बोलना तुमको शर्म नहीं आता कृष्ण? सुनी गोपीरारा बड़ा रोषा, अभी बात कहूँ, हाँ रानी कहती है तुम्हारी बातें सुन के हमको और गुस्सा आ रहा है। पहले बताया ना गुस्से से बोल रही है, गुस्से से बड़े नंबर होता है, ज़्यादा जो गुस्सा आता है ना सबके सामने दिखा नहीं सकता, तो काटने के लिए क्या होता है, बड़े नंबरदार से बोला जाता है। ऐसे सारे गोपियाँ जो है बड़ा रोषा, यह स्मृति नहीं आ रहा, संसार को कहाँ तारा, संसार को पतितोत्तर नावलंबम, कहा था ना, अरे हमको संसार को है कहाँ, देह स्मृति नहीं आ रहा, हमारे पास देह है करके वो भी नहीं मालूम हमको। विरह समुद्रे जाला कामाति मिंगले गिला, हम तो विरह सागर में डूब रहे हैं, और उधर क्या है, कामत मिंगल है, गोपी गणे नेह तारा पारा। देखो हमको ये विरह सागर से आपको हमको उद्धार करो, और ये कामत मिंगल से हमको बचाओ। हम साधारण से लोग नहीं है जो संसार कूप में गिरे पड़े हैं। कृष्ण इस प्रकार हमको अवहेलना मत करो, हमारी भक्ति का अवहेलना मत करो। हमारा असाधारण लोग नहीं हैं, आपको ही प्राण मान के जीने वाले हैं। ऐसे लोगों को आप ज्ञान कर्म का उपदेश देते हो, ठीक है, अगर साधना भक्ति का उपदेश भी देता तो भी चलता, लेकिन तुमने ज्ञान और कर्म का उपदेश, इस प्रकार का कुटनाथ, इस प्रकार का कठोर वचन हमने आज तक नहीं सुना। जो 82वें अध्याय में जो है इतना कठोर है तुम्हारा प्रवचन, ये प्रवचन जो है दुनिया याद रखेगा। भले दिखने के लिए ज्ञान और कर्म का विश्लेषण हो सकता है, योगियों का लिए बहुत भा सकता है, लेकिन इससे बड़ा पत्थर, इससे बड़ा आटम बम, इस प्रवचन से बढ़कर आटम बम हमारे लिए नहीं है। वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलीन वन श्री कुंज राधिकाली रासाधिका लीला। अच्छा भूल गया सब क्या क्या करता था। हाँ, वृंदावन में, गोवर्धन में, यमुना पुलीन में, वन में, से अनेक कुंजों में रास क्रीड़ा किया। श्री व्रजेरा व्रजा जना माता पिता बंधु गण बड़ा चित्र के मोने पारसिला। अच्छा ठीक है, बाकी सब तो बात तो छोड़ो, हमको भूल सकता है क्योंकि हम तो तुम्हारा तो है, हम तो गर्लफ्रेंड्स हैं, एक नहीं तो दूसरा पकड़ लेते हो, ऐसा स्वभाव होता है। लेकिन तुमने अपने माता पिता को कैसे भूल गया? हमको भूल गया, चलो ठीक है, एक गर्लफ्रेंड गई तो दूसरा मिल जाती है, लेकिन एक माँ चाहिए तो दूसरे को माँ मिलती है क्या? इससे पता लगता है तुम कितने कठोर हो। श्री व्रजेरा व्रज जना माता पिता बंधुगण, अपने बंधुगण को भूल गया। बड़ा विचित्र की बात है। लोग बोलते हैं तुम हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु, सबको बंधु है, कहाँ का तुम अपने माता पिता को भूल गया, कहाँ किसका बंधु है? अरे तो क्योंकि ये जो श्लोक है अदरानी का, केवल पराशिला हो, कैसे भूल गए? विदग्ध मृदु सद्गुण, हाँ अभी बोल रहे हैं। अच्छा, लोग बोलते हैं तुम विदग्ध हो, हाँ बड़ा कल्चर्ड व्यक्ति हो। कहाँ का कल्चर है? माता पिता को भूल जाए कल्चर है क्या? हाँ, इधर यशोदानंद महाराज रो रहे, आंखों में आंसू ऐसे बग रहे, उनके घर के दरवाजे से ऐसे पानी की धारा बहती, नदी जैसा बहती है। तुम उधर 16,000 एकड़ों 108 रानियों के साथ में रमण कर रहे हो, राजा के रूप में घूम रहे हो, प्रजा आपको आके जय महाराज कहते हैं, तो इधर तुम्हारे माता पिता तड़प रहे हैं। कुछ तो शर्म करो, कहाँ का विदग्ध हो? लोग बोलते हैं मृदु हो, कहाँ का मृदुत्व है तुम्हारा? खत्म हो गया सारा मृदुत्व, तुम्हारे ऐसे कठोर संसार में कोई है ही नहीं। सद्गुण, अरे सद्गुण है, सारे सद्गुण भगवान में होते हैं, एक भी सद्गुण दिखाई नहीं पड़ता। सुशील, अरे ये कहाँ क्या गया सुशील? सुशील मतलब बड़े सभ्य व्यवहार के, कल्चर्ड व्यक्ति, वेल बिहेव्ड पर्सन है। ये कहाँ का तुम्हारा बिहेवियर है? इतने सालों के बाद हमारा मुलाकात हुआ, 2-4 प्रेम की बातें कहते कितना अच्छा होता। सीधा के प्रवचन सुनाया। इस लोक में भी कैसे चेको, अगर कोई आया आके बैठो, पिता के तुझको याद किया, कोई पूछे कैसे लगे आपको? हाँ कोई कैसे हो, ठीक है बैठ, बाद में सुनाना, कम से इतना तो करता हमसे।
हाँ, तबे तुम्हारा मन नहीं स्मरे व्रज जना सेयमा दुर्दैव विलासा, तुम्हारा नहीं। देखो, लोग कहते हैं तुम्हारे अंदर कोई दोष का आभास ही नहीं है, सारे सद्गुणों से संपन्न है, लेकिन तबे इस प्रकार होने पर भी तबे ये तुम्हारा मन, इस प्रकार का मन क्यों है, हमारे प्रति क्यों नहीं है, क्यों है नहीं स्मरे व्रज जना। देखो, इतना सब कुछ गुण है, तुमने आज तक व्रजन का स्मरण ही नहीं किया, हमारा याद भी नहीं किया। तो ये हमारा दुर्भाग्य है, हम इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। लोग कहते हैं तुम मृदु हो, तुम स्निग्ध हो, तुम कृपालु हो, दयालु हो, लेकिन जिन्होंने आपको सर्वस्व दे दिया उनका स्मरण भी नहीं किया, ये कौन सा कहाँ का न्याय है। ये बस हमारा दुर्भाग्य है, यानी दुर्भाग्य का कारण हो। ये ऐसे अद्भुत श्लोकों के द्वारा इधर गोपियाँ राधा रानी के भाव में आहुस्ते नामदारविंदम, रथ यात्रा में सबके सामने इस श्लोक की व्याख्या इस अद्भुत श्लोक में हुआ है। अभी आप बहुत समय से इधर हो, घर जाइए और इन श्लोकों को खास करके अध्याय हैं चैतन्य महाप्रभु डांसिंग इन फ्रंट ऑफ रथ, अध्याय पढ़िए और आनंद को अनुभव कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत की, जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की। जगन्नाथ जी को वापस लाना है, सिंहासन में बैठाना है। हरे कृष्ण, प्रसाद ग्रहण करना है।